ہم سب جانتے ہیں کہ کہانیاں سننا تو سب کو بہت پسند ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بھی ہماری کہانیاں پسند ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری مزیدار کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کتنا خوبصورت نظارہ ہے۔ شامیر اپنے موبائل کے کیمرے سے خوبصورت پہاڑوں کی تصویریں اتار رہا تھا اور ساتھ ہی کہہ رہا تھا کہ کسی نے سچ کہا ہے کہ سوات پاکستان کا سوئٹزرلینڈ ہے۔ سمرا بھی اس خوبصورت وادی کو دیکھ کر خوشی سے کہہ رہی تھی اور یہاں کے ٹھنڈے موسم سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ پاکستان میں ان دنوں شدید گرمی کا موسم چل رہا ہے، لیکن یہاں دیکھو کتنا اچھا موسم ہے۔ ادھر آبشار کا نظارہ تو بہت ہی خوبصورت ہے، علی نے کہا، جو آبشار سے گرتے پانی کو دیکھ کر تصویریں اتار رہا تھا۔ چلو اب آگے چلتے ہیں، تم تو یہاں پر ہی جم گئے ہو، عامر اکتا کر بول رہا تھا۔ وہ پہلے بھی یہاں آ چکا تھا اور ان سب کو اب وہی گائیڈ کر رہا تھا۔ وہ پانچوں فرسٹ اور سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے اور آپس میں بہت اچھے دوست بھی تھے۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں اس بار ان لوگوں نے سوات آنے کا پروگرام بنایا تھا اور وہ کراچی سے لمبا سفر کر کے یہاں تک پہنچے تھے۔ یہاں پر انہوں نے ایک چھوٹے سے مقامی ہوٹل میں کمرہ لیا اور سامان رکھ کر باہر نکل آئے۔ وہ پانچوں اچھے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، مگر عامر کا باپ کافی امیر تھا۔ اس کے ابو ایک سرکاری آفیسر تھے اور ان کے گھر میں پیسے کی بہت ریل پیل تھی۔ عامر کو نئی نئی جگہوں کا سیر کرنے کا بہت شوق تھا اور اسی کی شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے باپ نے اسے ایک گاڑی بھی خرید کر دی تھی اور وہ اسی پر اس وقت یہاں اپنے دوستوں کے ساتھ موجود تھا۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ میں نے یہ ساری جگہیں دیکھی ہوئی ہیں۔ سمرا منہ بنا کر کہنے لگی کہ پہلے ہمیں تو دیکھ لینے دو، جب تم پہلے دیکھ چکے ہو تو تم خاموش بیٹھو۔ تم یہاں دوبارہ کیوں آئے ہو؟ دراصل میں پہلے اس وادی کی دوسرے سمت نہیں گیا تھا، سنا ہے کہ وہاں بھی بہت خوبصورت نظارے ہیں۔ تو چلو ایسا کرتے ہیں، پہلے عامر کے ساتھ ہم دوسری طرف کا علاقہ دیکھ لیتے ہیں، شہری نے ان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شامیر بھی کہنے لگا کہ چلو ٹھیک ہے۔ پھر وہ اپنی گاڑی میں جا بیٹھے اور عامر نے اپنی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ وہ گاڑی کو خطرناک علاقوں کے ان خطرناک راستوں پر دوڑانے لگا۔ باقی سب نظاروں میں مگن تھے۔ تبھی علی پوچھنے لگا کہ اب اور کتنی دیر لگے گی؟ پتھریلی زمین کی وجہ سے گاڑی آہستہ چل رہی تھی، ورنہ تو ابھی تک ہم پہنچ گئے ہوتے۔ تقریباً 2 گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد عامر نے گاڑی روک دی۔ یہاں پر بہت سارے درخت تھے اور جیپ آگے نہیں جا سکتی تھی۔ تبھی وہ بتانے لگا کہ باقی کا راستہ ہمیں پیدل طے کرنا ہوگا۔ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے یہ کوئی جنگل ہو، علی ان درختوں اور جھاڑیوں کو دیکھ کر کہنے لگا۔ پھر تو یہاں پر جنگلی جانور بھی ہو سکتے ہیں، شامیر کہنے لگا۔ یار صرف بندروں کا تو سنا ہے کہ یہاں کافی تعداد میں موجود ہیں، لیکن شہری کہنے لگا مجھے تو یہ جنگل شکل سے ہی خطرناک لگ رہا ہے۔ تم تو ہو ہی ڈرپوک، عامر کہنے لگا۔ سمرا بولی مجھے تو بہت بھوک لگی ہے، ابھی ہوٹل میں ناشتے کے نام پر تم نے اچھا خاصا کھایا ہے، شامیر سمرا سے کہنے لگا۔ باتیں کرتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہے تھے۔ درختوں کا وہ سلسلہ کافی دور تک پھیلا ہوا تھا اور چھوٹے چھوٹے بندر انہیں دیکھ کر شوخیاں کر رہے تھے۔ شہری نے مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھایا اور ایک بندر کی طرف اچھال دیا۔ بندر اس کے ساتھ کھیلنے لگا۔ وہ لوگ چلتے جا رہے تھے اور جنگل تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تبھی انہیں جنگل کے درختوں کے درمیان میں ایک پرانی سی عمارت نظر آئی جو لگتا تھا کہ کسی زمانے میں بہت خوبصورت رہی ہوگی۔ تبھی علی کہنے لگا یہ تو کسی مہاراجہ کا محل لگتا ہے، کیا تم جانتے تھے اس محل کے بارے میں؟ سمرا عامر سے پوچھنے لگی۔ نہیں، میں تو پہلی بار یہاں آیا ہوں۔ یہ تو بہت خوبصورت عمارت رہی ہوگی، آخر یہ کس نے بنایا ہوگا؟ اب تو یہاں پر جنگل اگایا ہے، پاکستان بننے سے پہلے کا دور کا تعمیر شدہ لگتا ہے۔ تبھی وہ سوچنے لگے کہ اس محل کو اندر سے دیکھنا چاہیے، لیکن کوئی بھی اندر جانے کو تیار نہیں تھا کہ وہ اتنا خوفناک لگ رہا ہے، پتہ نہیں اندر سے کیسا ہوگا، بھوت بنگلہ ہی ہوگا۔ تم سب بزدل ہو، عامر کہنے لگا۔ اندر سے ایسے ویران ہوگا تم سوچ نہیں سکتے، علی کہنے لگا۔ عامر اور سمرا کا دل تھا کہ وہ اندر جا کر دیکھیں۔ وہ اس کی ٹوٹی پھوٹی چار دیواری پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے۔
अहाते का फर्श ईंटों का बना हुआ था और जो जगह जगह से टूट फूट का शिकार थी, वहाँ जंगली पौधे उगे हुए थे। वो दोनों महल के अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे जो कि बंद था और दरवाज़ा लकड़ी का बना हुआ था। यहाँ ताला नहीं लगा हुआ, आमिर ने बताया। फिर उसने दरवाजे को खोलने के लिए धकेला तो आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुलता चला गया और एक अजीब सी बू उनकी नाक से टकराई। न जाने कब से ये दरवाज़ा बंद पड़ा है, इसीलिए इसमें बू फैली हुई है। वो अंदर दाखिल हो गए। अंदर अंधेरा फैला हुआ था। कमरा काफ़ी बड़ा था, जगह जगह मकड़ी के जाले लगे हुए थे। उन्होंने अपने सामान से टॉर्च निकाली। आमिर ने समरा से पूछा कि मेरे मोबाइल में टॉर्च है कि नहीं। समरा अपने मोबाइल की टॉर्च रोशन कर रही थी। उस कमरे में 3 दरवाजे थे जो इस वक्त बंद थे। अभी वो लोग कमरे का जायजा ले रहे थे कि एक जोरदार चीख सुनाई दी। आमिर और समरा का दिल तो लगा कि बाहर आ जाएगा। वो चीख उल्लू की थी जो रोशनदान में बैठा हुआ उन्हें देख रहा था और वो खौफजदा हो गए थे। उल्लू को देखकर उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया। वो दूसरे कमरे में दाखिल हुए तो वो भी मट्टी और जालों से अटा हुआ था। अभी वो 2 ही कदम चले थे कि आमिर का पाँव किसी चीज़ से टकराया और वो मुंह के बल फर्श पर जा गिरा। समरा ने टॉर्च की रोशनी जब डाली तो दोनों की चीख निकल गई। फर्श पर एक इंसानी ढांचा पड़ा था और आमिर का पाँव उससे टकराया था। दूसरे ही लम्हे वो जल्दी से खड़ा हुआ और अपने कपड़े झाड़ने लगा। तभी समरा कहने लगी, मुझे तो यहाँ से बहुत डर लग रहा है, चलो जल्दी करो, यहाँ से वापस चलते हैं। अभी वो दरवाजे की तरफ बढ़े ही थे कि दरवाज़ा खुद ब खुद अचानक से बंद हो गया और कमरे में अंधेरा फैल गया। समरा के मोबाइल की रोशनी ही थी जिसके सहारे वो लोग खड़े थे, वरना अब तक तो उनका दिल बंद हो चुका होता। आमिर ने जल्दी से अपना मोबाइल निकाल कर रोशन कर लिया। अचानक चिमगादड़ों की फौज उन पर हमला आवर हो गई। वो दोनों हाथों से उन्हें दूर हटाने लगे। साथ साथ वो कोशिश कर रहे थे कि दरवाज़ा खुल जाए। तभी दोनों सोच रहे थे कि हम तो बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं, अब यहाँ से निकलने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। जब उन्होंने टॉर्च की रोशनी पूरे कमरे में डाली तो वो देखते ही रह गए कि कुर्सियों पर इंसानी ढांचे बैठे हुए थे और वो गर्दनें मोड़कर इनको देखने लगे थे। ढांचों की इन हरकत को देखकर अब तो ये दोनों अपनी अपनी जगह पर साकित ही हो गए थे। ढांचों ने जब इन दोनों को देखा तो तालियां बजाने लगे और साथ साथ हंसने लगे। खौफ के मारे उन दोनों का बुरा हाल था। निकलो यहाँ से, समरा आमिर को कह रही थी। अब दोनों ही मुड़े थे कि कमरे का दरवाज़ा एक झटके से बंद हुआ। वो दोनों बाहर नहीं निकल सकते थे। अचानक कुर्सियों से ढांचे उठे और उनकी तरफ कदम बढ़ाने लगे। ये दोनों पीछे होते होते दीवार के साथ लगे। अब तो ढांचे इनके बहुत करीब पहुंच गए थे। अब उन दोनों को लग रहा था कि वो किसी आसेबी चक्कर में फंस चुके हैं। वो सारे ढांचे किसी नामालूम ज़बान में कुछ बोल रहे थे और ये दोनों सोच रहे थे कि न जाने अब वो हमारे साथ क्या करेंगे। इतने में उसी कमरे में मौजूद एक और दरवाज़ा आवाज़ के साथ खुला और एक लंबे से कद का ढांचा अंदर दाखिल हुआ और पीछे 2 ढांचे और भी थे। उन्होंने हाथों में नेज़े उठा रखे थे। लंबे कद वाला ढांचा चलता हुआ इन दोनों के करीब आया और इनको सर से पांव तक देखने लगा। फिर उन्होंने आपस में किसी ज़बान में कोई बात की और उनके जिस्मों में नेज़े की नोकें चुबो कर ऊपर ले जाने लगे। चबूतरे के नीचे सीढ़ियाँ बनी हुई थी और आमिर और समरा सीढ़ियाँ चढ़कर चबूतरे के करीब पहुँच चुके थे। वहाँ पर हथियार रखे हुए नए महसूस हो रहे थे। वो दोनों समझे कि अभी शायद ये हम दोनों को ख़त्म कर डालेंगे। तभी आमिर कहने लगा कि मैं अली और शामिर को कॉल करता हूँ, शायद वो हमारी मदद कर सकें। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। तभी समरा कहने लगी कि वो लोग तो बहुत डरपोक हैं, जब उन्हें अंदर का हाल पता चला तो वो कभी भी आकर हमारी मदद नहीं करेंगे। आमिर कहने लगा, उन्हें बताना तो चाहिए कि आखिर हमारे लिए मसला बन गया है। आमिर ने कॉल मिलाई और आहिस्ता आवाज़ में बताने लगा कि हम तो यहाँ पर फंस गए हैं, यहाँ पर ढांचे मौजूद हैं जो हमें शायद मार ही डालेंगे। कुछ देर तकरीर करने के बाद एक ढांचा फिर इन दोनों की तरफ मुतवज्जे हुआ। दूसरे ही लम्हे छत से लटकती रस्सियाँ बरामद होने लगीं और आमिर और समरा के पाँव जकड़ते चले गए। फिर एक दोनों से उनके जिस्म ऊपर उठ गए और वो रस्सी के साथ लटक गए। उनके सर नीचे थे और टांगे ऊपर थीं।
तभी ये दोनों उनकी मिन्नत करने लगे कि हमें नीचे उतार दो। समरा कह रही थी, मुझे लगता है ये हमारी गर्दनें काटना चाहते हैं। आमिर कहने लगा, तुम खामोश रहो, मैं कोशिश करता हूँ कि अपने आप को छुड़ा सकूं। ये कहकर अपने टांग को हरकत देने लगा जो रस्सी से बंधी थी। तभी वो रस्सी टूटी और उसने अपने जिस्म को जोर से हिलाया और नीचे गिरकर हथियारों में से एक छुरा उठा लिया। ढांचों ने जब उसे छुरा उठाते देखा तो एक दूसरे से जबान में बात करने लगे, ऐसी जबान जो इनकी समझ में नहीं आ रही थी। आमिर ने बहादुरी दिखाई और उन ढांचों के ऊपर वार करना शुरू कर दिया। छुरियों के वार से उनके जिस्म की हड्डियां अलग हो रही थी। ढांचों में खलबली सी मच गई थी। आमिर ने दूसरे हाथ में फिर छुरा उठा लिया था और वो पै दर पे वार करता चला जा रहा था। कुछ ही देर बाद सारा कमरा ढांचों से खाली हो गया। कुछ तो गिर गए थे और कुछ भाग गए थे। समरा ने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया और कमरे में बिखरे हुए ढांचों को देखने लगी और शुक्र अदा करने लगी कि उनकी से जान छूट गई। अभी वो एक कदम भी न चले थे कि जोरदार आवाज के साथ कमरे की छत से एक बड़ा सा पिंजरा उनके ऊपर आकर गिर गया और वो दोनों एक नई मुसीबत में फंस गए। अब वो इस मसले का हल सोच ही रहे थे कि दरवाजे से दोबारा ढांचा अंदर दाखिल होने लगा। वो खुशी से कहे लगा रहे थे और इन दोनों की बेबसी देख रहे थे। तभी ये दोनों कांपती हुई आवाज में उनसे कहने लगे कि हमें क्यों पकड़ रखा है, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमें जाने दो। तभी एक ढांचा कहने लगा कि यहाँ पर जो एक बार आता है वो वापस नहीं जा सकता। सदियों से इस महल पर हमारी हुकूमत है और कोई भी यहाँ पर अंदर दाखिल नहीं हो सकता। बाहर से शामिर और अली मुसलसल कॉल मिला रहे थे लेकिन उनकी कॉल नहीं मिल रही थी। वो बाहर इंतज़ार कर रहे थे। तभी अचानक आमिर के मोबाइल पर कॉल रिसीव हुई जिस पर बात करते हुए आमिर ने बताया कि हम यहाँ पर फंस गए हैं और ये ढांचे हमें अपनी खुराक बनाना चाहते हैं। उसके ये कहते ही आवाज़ आनी बंद हो गई। या तो फ़ोन कट गया या फिर कोई और मसला था। जैसे ही शामिर और अली को ये बात पता चली उन्होंने जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करना शुरू कर दी और महल में दाखिल होने की कोशिश करने लगे और आग जलाने लगे। तभी शामिर कहने लगा, क्या वाकई इंसानी ढांचे आग से डरते हैं? और तभी शहरी कहने लगा कि हाँ, जल्दी से साथ साथ कुरानी आयत का विर्द भी करो ताकि हम इन्हें यहाँ से भगा सकें और अपने दोस्तों को बचा सकें। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए उन्हें अपने दोनों दोस्त दिखाई न दिए। वो परेशान होकर यहाँ वहाँ ढूंढने लगे। वो एक कमरे से दूसरे और दूसरे से तीसरे में अपने दोस्तों को ढूंढ रहे थे। आग वो लगा चुके थे और आग को देखकर ढांचे शोर मचाते हुए वहां से भागने लगे। उनके जिस्मों से जलती मशलें लगाई जाने लगी और उन ढांचों को आग लग गई। चीखों पुकार इतनी मच गई कि उन्हें कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। जैसे ही उन्हें समरा और आमिर नजर आए तो उन्होंने बाहर जाने का दरवाज़ा ढूंढना शुरू कर दिया। बाहर निकलते ही उन्हें अपनी गाड़ी दिखाई दी। वो जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठे और गाड़ी को होटल के रास्ते पर डाल दिया। रास्ते में वो आमिर और समरा से सारी तफसीलात भी पूछ रहे थे। हालांकि वो सारे बहुत डरे हुए थे। होटल पहुंचने पर उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो खैर खैरियत से वहां से निकल आए, वरना वो इंसानी ढांचे तो शायद इन्हें अपनी खुराक ही बना डालते। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना ना भूलें।